Now joining me on the broadcast is my colleague Anshul. Anshul, what more details are we getting from the ground at this point of time when the nation mourns the loss of the soldiers? So yes, a shocking moment for the country where the two soldiers who lost their life in the line of duty in Jammu Kashmir, the body of Major has been brought to his residence where the family members and the close relatives and also it seems like the entire city has now come out on the streets to pay tribute to the Major who has lost his life in this very, very unfortunate and the kind of incident that happened in Anantnag day before yesterday. The family members are absolutely broken, but yes, they are also, they know that their son has laid down their life for Mother India to make sure that the people of the country are safe, to make sure that these terrorists who step out and create ruckus and try to harm the peace and harmony of the country, these are the people who without thinking of their life went ahead to make sure that they are neutralized and the people of the country the country stays safe, and that is the kind of emotion that can be seen on the ground. The slogans of Indian Army, the slogans paying tribute to the Major are still reverberating on the ground over here. So yes, in the next few minutes, what is expected in this entire scene is that the body would be kept for the last session, post which the last ride would happen. So yes, and absolutely shocking incident, but not only shocking, but also a very, very sad incident where another soldier has to lay down their life to make sure that the country remains in peace. All right, those are the visuals. Thank you so much, Anshul, for all those inputs. These are the visuals that we are getting from on ground. Now, joining me on the broadcast is my another colleague, Nikhil Lakhwani. Nikhil, what is the mood like on the ground? It's clearly the nation is mourning the loss of the soldiers, and it indeed is a sad moment for the nation as we lose the brave hearts of the nation to this encounter. तमाम बड़े अधिकारी अफसर यहाँ मौजूद हैं और तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है आप फूलों से सजा हुआ वो ट्रक देख पाएंगे और इसी ट्रक में तिरंगे में लिपटे हुए मेजर आशीष हैं जिन पर आज पूरा फ़ख्र के साथ एक पूरी शान के साथ उनको विदाई यहाँ पर दी जा रही है। राजकीय सम्मान के तहत उनकी विदाई यहाँ पर हो रही है और मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे मेरे को यहाँ पर हुए और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो लोग उनको जानते हैं वो तो आए ही हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग उनका नाम सुनकर यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि माँ भारती का एक वीर सपूत जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। देखिए आप नारे सुन पाएंगे, ये ऑडियो हम कहेंगे कि थोड़ा उसको बूस्ट कर दें, आप सुन पाएंगे कि भारत माता की जगह यहाँ पर नारे लग रहे हैं, तिरंगा झंडा हाथ में है और ये वो एक शान के साथ गर्व के साथ अपने बेटे को विदाई देने की यहाँ पर एक कोशिश है और तमाम सेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सिख रेजिमेंट के कर्नल यहाँ पर डीपी पांडे पहुंचे हुए हैं और आप ये देखिए, आपको आगे से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको अंतिम विदाई यहाँ पर मेजर आशीष को दी जा रही है और कहते हैं कि वीर जवान चले जाते हैं लेकिन उनका जो नाम होता है वो आसपास के इलाकों में लोगों को, युवाओं को प्रेरणा देता है फौज में जाने के लिए। कुछ उसी तरीके से ये देखिए भारत माता पर अंतिम सफर पर निकले मेजर आशीष और कुछ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये अंतिम सफर जरूर है कहने के लिए, लेकिन यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसे वीर सपूत का अध्याय शुरू होता है जो सदियों तक, सालों तक तमाम युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा, देश में होने के लिए वो सीख देता रहेगा। क्योंकि आशीष ने ये सीख अपने चाचा से सीखी, वो एयरफोर्स में थे, उनसे प्रेरणा मिली तो मेजर आशीष मेजर बने और कुछ ही महीनों पहले वो मेरठ से जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, ट्रांसफर हुआ था। एक घर परिवार की अगर बात करें तो परिवार में उनके एक 2.5 साल की बच्ची है, पत्नी है ज्योति, बूढ़े माँ बाप, 3 बहनों के चहेते थे, 3 बहनों में अकेले भाई थे मेजर आशीष और गर्व के साथ आप इन नारों की गूंज के साथ सुन पाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए शांत होऊंगा और मैं वो नारे अपने दर्शकों के साथ सुनाना चाहूंगा। मेजर आशीष धोचक अमर रहे, ये वो नारे हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं और
तमाम मैं उन युवाओं को देख पा रहा हूं जो ट्रक को पूरी चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनके परिजन ट्रक के आगे चल रहे हैं और सेना के तमाम बड़े अफसर ऊपर ट्रक पर मौजूद हैं। और ये आप हुजूम देखिए मेरे पीछे, ये वो हुजूम है, वो परिजन हैं, तमाम वो आसपास के लोग हैं जो इस अंतिम यात्रा में मेजर आशीष की अंतिम सफ़र पर आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ऐसा सफ़र है, इसे आप अंतिम कह लीजिए, लेकिन ये सफ़र कहीं ना कहीं तमाम देशवासियों को देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरणा देता है। तमाम उन हरियाणा के वीर जवान, क्योंकि हरियाणा वो भूमि है जहाँ से लाखों की तादाद में युवा फौज में भर्ती होते हैं, और कहीं ना कहीं उन युवाओं को प्रेरणा आशीष जाते जाते देना चाहते हैं, दे रहे हैं। वो तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है, आप ट्रक के ऊपर वो तिरंगा झंडा देखिए, शान से वो तिरंगा झंडा ऐसे ही जवानों की बदौलत लहरा रहा है। हम चैन की नींद सोते हैं तो आशीष, मेजर आशीष जैसे जवानों की बदौलत ही सो पाते हैं। और जो सरहद पर लोहा लेते हैं, उन जो खराब मंसूबे वाले जो एक तरीके से जो आतंकी, उनसे लोहा लेते हुए वो शहीद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इन जवानों की बदौलत ये पूरा देश चैन की नींद सोता है। तो ये अंतिम सफ़र है उस बेटे का, उस सपूत का जो घर का बहुत लाडला था। उसने तमाम सपने देखे अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे। एक घर बनाया, क्योंकि अभी उनका परिवार किराए के मकान में रहता है, और एक घर बनाया कि उस घर में उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, बच्ची रह पाएंगी। लेकिन उस घर के गृह प्रवेश से पहले ही आशीष हमें छोड़ के चले गए, वो शहीद हो गए। और जब सुबह हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया तो जैसे ही खबर मिली तो दूर दूर के गांव के लोग जो सिर्फ उनको जानते नहीं थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अपने भाई, अपने उस जिगर के टुकड़े को विदाई देने की कोशिश में यहाँ पर शामिल हुए हैं। नम आंखें हैं, आंखें नम ज़रूर हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। और कहीं ना कहीं वो गर्व है कि आज अपने पूरे शान और शौकत के साथ अपने वीर सपूत को विदाई यहाँ पर देनी है। और उसी गर्व के साथ यहाँ पर नम आंखों के साथ अपने बच्चे को विदाई देते हुए यहाँ पर माएँ मौजूद हैं, तमाम वो परिजन मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आशीष, मेजर आशीष धोचक एक प्रेरणा के तौर पर इस पूरे इलाके में उभर के सामने आएंगे। और हम आने वाले समय में देखेंगे कि आशीष कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं को प्रेरणा देंगे जो फौज में जाना चाहते हैं, जो देश के लिए मर मिटने का ख्वाब देखते हैं। और जब हम उनके परिजनों से बात कर रहे थे कल, तो उनके परिजनों ने हमें तमाम ऐसे उदाहरण बताए कि एक लड़का, छोटे से गांव का लड़का, सेना में जाने का ख्वाब देखता है। बचपन में अगर वो खेल भी खेलता है तो सेना और पुलिस के खेल खेलता है। और क्योंकि उनके परिवार में कई लोग पहले से फौज में रहे हैं, उनके चाचा खुद एयरफोर्स में थे, और 2 चचेरे भाई, गांव के 3 लड़के एक साथ फौज में भर्ती हुए थे, और उनमें से एक आशीष धोचक भी थे। तो कल जब उनका चचेरा भाई घर पहुंचा तो उनके पिताजी लिपट कर उससे पूछ रहे थे कि बेटा तू आ गया, लेकिन मेरा बेटा तो चला गया है। तो अपने हम उम्र, उनके उम्र के लोग थे, उनको देखकर उनका परिवार बहुत भावुक हो रहा है, रो रहा है, क्योंकि तमाम उनके गांव से तमाम युवा फौज में हैं। और ये दिन शायद ही कोई माँ बाप कभी देखना चाहें कि अपने बच्चे को कंधा देना पड़े, एक बूढ़े पिता अपने बच्चे के उस ताबूत को कंधा दे। ये एक ऐसी दुख की घड़ी है, शायद ही कोई पिता कभी देखना चाहेगा। लेकिन वो दुख का पहाड़, अब आप देखिए, ये आशीष के पिता की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे आशीष के पिता हैं। 2 दिन से इनका यही हाल है। और जब माँ से कल मीडिया वाले बात कर रहे थे तो माँ कह रही थी कि तो देश का बेटा है, देश का बेटा है, मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि मेरा बेटा तो था ही नहीं, तो ये देश का बेटा था जो अब हमें छोड़कर चला गया। लेकिन पिता का जो रिश्ता बेटे से होता है वो सालों तक, कई साल, सदियों तक आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब बेटा छोड़ के जाता है तो पिता की आंखें भी नम हो जाती हैं। और वो हम यहाँ पर देख पाए कि हाथ जोड़े हुए उनके पिता यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी जो, क्योंकि रीति रिवाज होते हैं कि महिलाओं को आगे यहाँ पर जब अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पर शायद उनको यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। वो ट्रक जो सजाया हुआ आप देख पाएंगे जो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और ये अंतिम सफ़र है मेजर आशीष का, जो यहाँ से अब शुरू हुआ है, जो उनके पैतृक गांव विंजौल में जाके ख़त्म होगा। तो मेजर आशीष शहीद हुए, आंखें नम हैं सभी की, लेकिन गर्व है कि एक बेटा देश पर अपनी जान न्यौछावर करके चला गया। और अब ये मेजर आशीष सालों तक उन युवाओं को प्रेरणा देंगे जो देश पर मर मिटने के ख्वाब देखते हैं।
वो सपने सजोते हैं। तो तमाम उनके परिजनों के साथ सेना के बड़े अफसर यहाँ पर पहुँचे।